Okay, thank you. Here I am in Nambua. This place is known as Komawe Squatters. Just to let everyone know, today is Saturday. It's not a school day, but we took this time out today to come and meet the parents and the children of this settlement, because these children, there used to be a school here. It's a Nambua Sanatan, and now the government will operate this school as a vocational school where the children will come and learn catering and all that other vocational stuff. But we have picked some children. These children used to go to this school. It was so convenient. But now, since the school is closed, they will be scattered around different schools. And the reason for us to be here is to provide these children with school uniform, school bags and shoes, or some exercise books, whatever they need are, in order to provide them that so they can have a better education and quality education. In order to do that, I want to take this opportunity to thank Prem and Roshni Chandra. Prem and Roshni Chandra are very dedicated devotees of Shri Ram Mandir. And Prem and Roshni, I have met you and I have asked you once, and you have come forward and help us monetarily contribution to, so that we can be here, come here and help the underprivileged children that you are seeing right now. And also I want to thank Anil Kumar, Mr. and Mrs. Anil Kumar and the family. I want to help thank you them. And Anilji, I know you very well. I know Ashnil and Bahurani. I know the entire family, and I want to thank you very much that your monetary contribution, आप लोगों के जो पैसा है, आज जो पैसा लेके हम यहाँ पे नंबुआ में खड़ा है, ये सब फैमिली लड़कन स्क्वाटा फैमिली के हैं. इन लोगों के पास कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, बुक्स नहीं है, जो कुछ भी इन लोगों की आवश्यकता पड़ी वो हमारे साथ में रोशनी रोहित है, वो जाके इन लोगों के कोऑर्डिनेटर टाइप है, वो सबके लिए सब कुछ खरीद के और लड़कन के मंडे से स्कूल में भेजे के प्रयास किया जाए ताकि लड़कन के भविष्य बन सके. अगर आप लोग ऐसा दानदाता ना मिले तो हम लोग शायद ऐसी कार्य नहीं कर सकेंगे, परंतु इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. रोशनी जी, प्रेम जी और अनिच और अनिल कुमार जी, श्रीमान श्रीमती अनिल कुमार, आपके परिवार को, समक्ष परिवार को मैं समाज सेवा फीजी की ओर से धन्यवाद देता हूं. और बस यही आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग हमको देवें ताकि हम ऐसे आकर इन बच्चों को, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ने में भी आगे इनको जाना है और भी कपड़ा, बुक्स और जूता का आवश्यकता होगी. तो इसके लिए अगर आप हमको मदद कर सकोगे समाज सेवा की ओर से तो हम आकर इनको भी मदद कर सकेंगे. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. And I will have one of the parents talk and see if some of the children can do a little bit of testimonial interview, thank the organization and also thank the donors and how they appreciate all the help that we are giving. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of the parents of this community, these few parents here, I would like to thank you for being here today to help us concerning our children going to school. We are so thankful. So thankful that you were willingly to be here, your time and everything that you brought for our children. We live in this settlement for a long time, and it's not easy to send the children to school, but we as parents, we know that we are responsible for sending them to school. We're trying our best every time to send them to school with whatsoever we can afford to send them to school to. We thank you, the donors and the organization, for helping us
We know that we are so grateful because most of the time you are responsible. Most of the time we struggle, but I think today I can say that we are lucky to have you. Uh, we are lucky to have some help from you people. Beginning of this year is not easy to us as parents of Sanatan Primary School because even I know from my children, they start kindergarten in this school. And one of my son left this Sanatan school to go for Muslim college. And from his school uniform, those are my children wearing when they go to school. But this year, it's a different story altogether because children have to go to school with a new school and the new school uniform. We have to get rid of Sanatan school uniform and then we have to send them with another school uniform. So it's not easy for us as parents. It's not easy for us Namboa Sanatan parents. As soon as we heard the news, the government want to send our children with Namboa Sanatan school to a new school. But we came as parents opposing that ideas because we know that we know how our children feel going to a new school. Even to a old school, it's not easy for them to go with outings. So we asked the government to help us. Government promised to help us, but never help us. They promised to give us a new school uniform for each of our children, but government never do that. They never help us, but we are trying with whatever was left from last year, a school bag, shoes, whatever books is there. We are just trying our best to send them to school. Because if leaving them at home, we will look irresponsible too. But sending them to school with old clothes, we are still all right with that. We are so thankful. We are so thankful. Mrs. Rohit came and told me about the help that came. To tell the truth, that's our prayer answered. Because even me, I send my children to school today. The beginning of this year, I have to send them with old shoes, old bags, whatever is there, all uniforms from other children who left, and they don't use that uniform. But I'm happy that I know I'm trying to send them to school. I'm happy because we find it hard to get the school. Most of our nearby children, they go to very fast schools because the schools were all full. But we were happy to send them to school. We're happy, we are grateful, we appreciate your help, and we pray that God will richly bless you for blessing the children, blessing the poor, because we know that's in the Bible, that if you bless the poor, you will have more. If you give, you will have more. Then who is receiving? Then who is he receiving? I want to thank you once again. Thank you very much, and God bless you. Thank you. हमारा नाम नंदिनी देवी है और हमारी लड़की है जशिका जशलिन देवी. उसके हार्ट प्रॉब्लम है, उसके लेकर हम लोग इंडिया ऑपरेट करके लेकर आया है. और फिर यहाँ हम सुबह में हार्ट हाउस में रहता लटका में. फिर हमारे यहाँ सुबह रह लगा. हम यहाँ रेंट करता है $150 अ मंथ. और कौन सी स्कूल यहाँ मिला रहा हम लोग के. फिर लास्ट मोमेंट ले हमारी लड़की के स्कूल नहीं मिला रहा. फिर हम लोग बहुत दौड़ा, बताइस कि 54 लड़कन है, बोले तुम्हारी लड़की की जगह नहीं है यहाँ SMS में, बताइस. फिर हम लोग मंडे के फिर किया वहाँ. तो वहाँ जब गया तो फिर एक चीनेला मिला, तो उससे बहुत रिक्वेस्ट करा हम लोग कि हमारी लड़की को ले लो, हमारी लड़की बीमारियाँ है, बहुत दूर चल नहीं पावे. तो लोग ले लीस और क्लास 7 में पढ़े हैं. यूनिफॉर्म्स वगैरह जूता सब लास्ट ईयर अभी भी यूज़ करे हैं. करना है आपके ये के जशिका जा बेटा. सर्जरी हुई के, बट अभी भी बेंजा इंजेक्शन पे है वीकली 3 वीकली. लड़की के कौन सी भाई से हार्ट प्रॉब्लम है. हार्ट प्रॉब्लम है. हाँ वो तो बीमार है लड़की. हाँ 3 हफ्ता पे बेंजा सुई लगा के, बेंजा सुई नहीं लगा तो उसके वायरस हो जावे हार्ट में. तो आप काम करता है?
हाँ मिले है तो कर लेता है। ओके, और आपके आजकल जॉब मिले तो कर लेता। आपके घर वाला है? नहीं है, छोड़ दी से। और तो आप सिंगल पेरेंट है? जी हस्बैंड नहीं है? ना। अच्छा, एक के लड़की है? जी हाँ। ओके ओके, तो ये जो आपके मदद मिली आज जो रकम से हम लोग हाँ। समाज सेवा की ओर से हाँ और डोनर की ओर थैंक्स से, करता है और परमेश्वर उनके दुगना आशीष दे है कि ऐसे से लड़कन के आए के लोग मदद करी से जगह पे। खाली आप अपन लड़की के अच्छा से पढ़ाना, हम लोग फिर भी आएगा अगले साल आए कि आपके फिर मदद करे के प्रयत्न करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं है, वैसे तो हमारा नाम रोशनी रोहित है और हम भी ये इस कोमावेस क्वार्टर्स में रहता है, बट हम काम करता है सनातन हेड क्वार्टर्स में एज एन एडमिन स्टाफ है। और फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आप लोग आए के, और हम लोग के रत्नेश के हम धन्यवाद देगा कि वो आए के हमें अप्रोच करी से कि आप लोग एक समाज सेवा जो हम लोग के सकता मदद करे, और हम आए के फिर अपन गांव में देख जितना जन के जनता रह लोग के बुलाए के आज लेके आके बैठाया यहाँ। और आप लोग अभी तो जो इंटरव्यू लिया है उसमें भी आप लोग सुन लिया है कि कितना भारी मुसीबत है ई गांव में, और हम लोग के ऊपर भी मुसीबत है। और हम आशा करता है कि जैसे आप लोग हम लोग के इस साल मदद करा है, ऐसे आने वाला साल में भी मदद करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कि अभी तो हम लोग स्कॉटर्स में भी हम लोग के खुद पता नहीं कि यहाँ से हम लोग कहाँ आगे जाएगा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और यही होप करता है कि बस आने वाला साल में भी आपसे मिलते रहेंगे। और फिर हम यही आशा करता है कि ईमेल द्वारा हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे जब तक हम सनातन हेडक्वार्टर्स में रहेंगे, और आपसे आपका के टच में रहेंगे। और यही भी उम्मीद करता हूँ कि इतना भी नहीं और भी आप हमें जैसे कि पढ़ाई में नहीं, अगर आप हम लोगों को आकर और ऐसे कुछ मदद करें, जैसे कि हमारे घर भी आकर देखे, किसी का घर भी बहुत अच्छा नहीं है, लीक करता है पानी वगैरह जब बरसता है, और या छोटा छोटा और प्रॉब्लम्स है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आगे चलकर, हम नहीं कहते कि अभी, आगे चलकर आप आए और उसमें भी आप लोग हम लोग के सहयोग दें। तो हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं, रत्नेश को भी, और जितना भाई बहन आप लोग आए हैं सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है। और समाज सेवा फीजी यूएसए को मैं अपने हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, जबकि उन्होंने अपने ही देश में आकर के और जो सेवा को जारी रखा है, और साथ में मुझे भी अवसर प्राप्ति हुआ इनके साथ में रह करके अपना सेवा जताने के लिए। तो आप देख रहे हैं जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, जो माताएं बैठी हैं, ये सब एक परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग जो है श्रीमान प्रेम जी और रोशनी चंद्रा और श्रीमती अनिल कुमार, ये आपका जो दान है एक बहुत बड़ा सहारा बनकर इस देश में आया है। हालांकि इस देश में आपने जन्म लिया है, लेकिन आज जो आपने दिया है इन बच्चों के लिए, इन माताएं के लिए, एक माँ होना कोई सहज बात नहीं है। बच्चे जानते हैं कि इनको सुबह स्कूल जाना है, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक माँ जानती है कि उनके पास में क्या नहीं है। तो ये सब माँ बैठी हैं, ये बैठी अभी 3 बज गया है, लेकिन यहाँ पर 12 बजे से बैठ करके वो राह देख रहे हैं कि समाज सेवा फीजी के कार्यकर्ता आएंगे और अपना कुछ जो है सहयोग है इनको देंगे। तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाज सेवा फीजी यूएसए के जो चेयरमैन हैं पंडित परमानंद शर्मा, उनके बेटे हेटी, साथ में प्रकेश, जितने भी समाज जनता वहाँ पे है, आपका जो दान है एक बहुत ही अच्छे संस्था में आ रही है, एक ऐसे संस्था में जहाँ पर एक पाई का हिसाब दिया जाता है और बहुत से अच्छी तरह से उस दान को उपयोग करते हैं हम। ये बच्चे अब जब इनको बैग मिलेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे उनको हीरा मिल गया है, कारण कि इनके पास भी पुराना बैग था, जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन आज इनको एक नया उम्मीद के साथ में नया बैग मिला है, और उस बैग के साथ में बुक्स भी है, बुक्स के साथ में अपने पाठशाला जाएंगे। तो मेरा यही प्रार्थना है समाज सेवा फीजी यूएसए के जितने भी अमेरिका के निवास स्थान रहते हैं लोग, जो इस सीडी को देखेंगे, आप कोशिश करना आपकी समाज सेवा को जगाए रखना, कारण कि आप इसी वतन के रहने वाले हो, इस माटी में आप बड़े हुए हो, इस माटी में आप इस यहाँ के अनाज खा करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना करके आप विदेश चले गए हो, वहाँ भी जाकर आपने मेहनत किया, साथ में पैसा आपने नहीं बटोरा है, लेकिन एक कर्तव्य बनता है कि अपने देश को कुछ लौटा कर दे, जो आज कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने फीजी की जनता की ओर से आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। श्रीमान प्रेम जी, रोशनी चंद्रा और श्रीमती अनिल कुमार, परमात्मा की विशेष कृपा आपके जीवन में रहे, आपके परिवार पे रहे, आपके व्यापार पे रहे, आपके संपत्ति पे रहे। इन चंद शब्दों के साथ में मेरा जय श्री राम। धन्यवाद।